Good afternoon, students. Today we are going to discuss another topic, which is a 7th class SST topic. And first of all, I would like to ask you some of the question answers. So, my first question is, what do you know about the village? Do you know the name of your village? I'm sure you will be familiar with it. Do you name of the town? Do you know the name of the town which is nearby to your village? That is a Batala, obviously, or Dera Baba Nanak. So if you want to talk about a city, that is Amritsar. If I want to ask you about the metropolitan city, that is the Delhi. The same way we have a societies in our world. So that was a basis of the class, caste and creed. They believe in this all areas. So today we will discuss this topic, tribal communities. Tribal communities, this is our chapter. So first of all, we look at the little bit of brief introduction about the topic. What is actually tribal society, or what was the origin of the tribal society? Actually, the society underwent many changes during the medieval period. As you know, we all are a human beings, and जब हम पैदा हुए थे तो उस वक्त और आज के टाइम में जो विकास हुआ है, that is a change, वो है बदलाव. तो उसमें जो माना जाता है कि जो हमारे फोर फादर्स थे, दे वर द मंकीज, वो हमारे फोर फादर्स मानते थे हम. तो आज भी जो है वो सिस्टम जो है वहाँ से ही चलता है, और इतनी डेवलपमेंट हुई कि हमारा जो एटीट्यूड है इतना बदल गया. आज हमारे पास हर चीज़ है, हर तरह की सुख सुविधा है. तो ये कुछ एक दिन में नहीं हुआ, इसको बहुत सारा टाइम लगा. तो ये एशियन जो मिडीवल पीरियड था, इसके दौरान बहुत सारे चेंजेस आए हमारे इंडियन कल्चर में, सोसाइटी में. ठीक है, अब हम बात करेंगे. द फर्स्ट थिंग वी वांट टू ऐड हियर, व्हाट इज द मिडीवल पीरियड एक्चुअली. द मिडीवल पीरियड इन इंडिया वी कंसिडर फ्रॉम 8th century to 18th century. 8th century to 18th century, जो 8वीं सदी से लेके 18वीं शताब्दी तक का जो समय है, वो हमें उसको भारत में मिडीवल पीरियड बोलते हैं. और जो अर्लियर 8वीं से लेके 8 to 13th सेंचुरी का जो टाइम है, वो अर्लियर मिडीवल पीरियड है, और 13 to 18 लेटर मिडीवल पीरियड है. तो इन सभी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ये इस पीरियड की हमने आज बात करनी है, इस 8वीं सदी से 18वीं सदी तक का जो टाइम था. राइट. तो 2 types of societies we have at that time. तो 2 तरह की सोसाइटी थी उस वक्त हमारे पास. तो किस तरह थी? One was a caste based society in which people were divided into a high and low caste, and there was a huge gap between low and high class. Okay, there was a one high class and low class society, and there was a huge gap in between. और दूसरी तरह की जो सोसाइटी थी वो थी ट्राइबल सोसाइटी. वो क्या थी? ट्राइबल सोसाइटी, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग थी. ओके, which did not follow caste rule laid down by the ब्राह्मण. जो ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने ये कास्ट के नियम बनाए थे, उनको वो नहीं मानते. ओके, तो अब हम बात करते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में कि ट्राइबल सोसाइटी क्या थी, किस तरह से वो लोग रहते थे, या उनका कल्चर क्या था. तो जो वी नो वेरी लिटल, हमारे पास कोई इसके बारे में कोई पुख्यात इन्फॉर्मेशन नहीं है. वी डोंट हैव एनी रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्राइबल सोसाइटी. व्हाई वी डोंट हैव द देयर फॉलोइंग रीजन. The tribal people did not keep written records because they were not educated, so they don't have a written record. So this was the reason. Okay, the second reason is they preserve their customs and traditions orally. वो जो भी उनकी जो customs थी, traditions होती थी, they only preserve it orally, यानी कि अपनी भाषा के जो भी उनकी मौखिक तरीका था उसके हिसाब से उसे preserve करते थे. तो इसलिए हमारे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. These are the passed from one generation to next generation by the word of mouth. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती थी by orally, by mouth के द्वारा ही. ठीक है. तो the tribal people did not easily let outsider in their area of habitation. ठीक है, habitat. तो वो जो वहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे वो आने की इजाज़त नहीं थी. The stranger person cannot come into their territory because they don't feel good. But still this thing is a prevalent. If you go to Odisha or in Africa, you cannot go to the tribal society. They will kill you, and they will be very harsh if you will go there without their permission. So next is the
tribal people generally lived in a remote areas such as a dense forest, hills, mountains, desert, which were extremely difficult to reach. Okay, तो अब हम बात करते हैं, ये तो उनकी कुछ विशेषताएं थी जो किस तरह के लोग थे और कैसे रहते थे, कोई हमारे पास डिटेल भी ज़्यादा नहीं है. अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशंस की. मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द ट्राइब्स वर एग्रीकल्चर, हंटर गैदरिंग एंड हीडिंग. तो उनकी ये मेजर ऑक्यूपेशन थी, एग्रीकल्चर, हंटर गैदरिंग और हीडिंग. ठीक है, यानी कि शिकार करते थे और पालन करते थे किसका, जैसे बकरियों को पालते थे या उनको मतलब चरवाना उनका काम था, गाय भैंस चरवाते थे, ये उनके मेन धंधे थे. या फिर एग्रीकल्चर थी. सम ट्राइबल सेटल डाउन एज अ एग्रीकल्चरिस्ट. कुछ ट्राइब जो थी वो एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में सेटल हो गई थी, लेकिन बहुत कम थी. वाइल अदर लेड अ नॉर्मेटिक लाइफस्टाइल. बाकी जो ट्राइब थी वो एज इट इज़ ही, जो उनकी प्राइमरी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल था, जो उनका रहने का एक तरीका था जंगल में, फॉरेस्ट में, उसी तरह से वो अपनी लाइफ लीड करते थे. सो थैंक यू स्टूडेंट. रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल स्टडी इन अ नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट. हैव अ गुड डे.